Good everyone. Today we'll be continuing our discussion further with the motion. तो आज हम motion of an object से related एक और term देखेंगे, that is acceleration. So acceleration भी you would have read this thing in your junior classes. आपने acceleration पढ़ा होगा अपने junior classes में. What is acceleration? जब आपने छोटे क्लास में पढ़ा था, when in junior classes you would have gone through the formula. It is velocity by time. So acceleration is velocity by time. That formula was applicable in the junior classes. Now velocity acceleration will be change in velocity divided by the time interval required for that change. So let us see about acceleration. Acceleration. So acceleration is equal to what? Acceleration, you can write the formula as change in velocity divided by time interval required. So now in class 11, don't say that acceleration is equal to velocity by time. No, acceleration is equal to change in velocity divided by the time interval required for that change. Now what does that mean? Suppose at time is equal to t1 second. When time is t1 second, velocity of the object is v1 meter per second. v1 meter per second. At time, when time is equal to t2 seconds, then velocity of the object is equal to v2 meter per second. Now what will be the change in velocity? Velocity में change कितना होगा? ये final velocity है, ये initial velocity है. Initially velocity v1 थी, final velocity v2 हो गई. So what will be the change in velocity? v2 minus v1. और time interval कितना लगा? t1 second से t2 second तक लगा to change this velocity. So time interval will be t2 minus t1. So अगर इस data को we keep it or we try to keep it in this formula, it will be what? It will be v2 minus v1 divided by t2 minus t1, that is change in velocity divided by the time interval required. Now when you say, or when this time interval is a little bit bigger, or there is some bigger time interval is considered and change in velocity is considered for that time interval, this acceleration is known as average acceleration. जैसा कि velocity के केस में होता था, जब आप average velocity की बात करते थे तो displacement divided by time interval और total displacement divided by time interval होता था. तो जब ये time interval बड़ा होगा तब velocity में change को time interval से आप divide करेंगे, आपको average acceleration मिलेगा और इसी को average acceleration भी बोला जाता है. तो we can write it as delta v divided by delta t, change in velocity divided by the time interval. Now जैसा कि velocity के केस में होता था average velocity और instantaneous velocity, वैसा ही acceleration के केस में भी होता है. So when you say instantaneous acceleration, that means that acceleration is defined at a particular instant of time. किसी एक particular instant पे defined है. It is not defined for a time interval. So instantaneous acceleration में क्या होगा? This time interval becomes very small. It becomes very small. बहुत छोटा हो जाता है. It tends to zero. Time interval क्या हो जाता है? लगभग zero हो जाता है. इतना छोटा time interval मतलब वो किसी एक instant पे ही time की बात करता है. So when you say limit delta t tends to zero, ये जो टाइम इंटरवल है जब बहुत छोटा आप लेंगे तो that
acceleration will give you acceleration at a particular time. So limit delta t, the time interval tends to 0, then dv by dt is this is instantaneous acceleration. This is instantaneous acceleration. यही instantaneous acceleration होता है, जैसा कि velocity के केस में था, average velocity और instantaneous velocity. So this whole thing, that is when delta t is very small, तो change in velocity भी बहुत छोटा होगा. So when change in velocity and change in time interval or change in time is very small, this delta can be replaced by dv. मतलब d and delta can be replaced by d. Delta represents change in velocity. D represents a very small change in velocity. So this is very small change in velocity divided by very small change in time, और this gives you instantaneous acceleration. जब आप change in velocity divided by time interval की बात करेंगे तब आपको average acceleration मिलेगा. तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इस तरह की क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. उसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द ग्राफ. जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है, एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. सो हाँ, वन मोर थिंग, दिस इज द, जैसा जब आपने वेलोसिटी के केस में देखा था तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज dx by dt. dx by dt means change in velocity, change in position, very small change in position divided by small change in time interval. तो वो क्या होता था? It was slope of a tangent at a particular point on which curve. कौन सा कर्व होता था? पोजीशन टाइम कर्व. क्योंकि ऊपर पोजीशन का चेंज था, नीचे में टाइम का चेंज था, इसलिए वो किसका स्लोप था? पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप था. अब यहाँ किसका चेंज आप कंसीडर कर रहे हैं? आप वेलोसिटी का चेंज और टाइम का चेंज कंसीडर कर रहे हैं. तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, चाहे एवरेज की बात करें चाहे इंस्टेंटेनियस. तो एक्सेलरेशन किस कर्व का या किस ग्राफ का स्लोप होगा? It will be slope of velocity time curve या velocity time graph. So acceleration is represented by, या acceleration can be found out by finding the slope of velocity time graph, VT graph जिसको बोलते हैं. So remember this thing that slope of वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ, जो भी आप लिखना चाहें, कर्व, ग्राफ, दिस ग्राफ कैन बी ऑफ वेरियस शेप, स्ट्रेट लाइन, कर्व, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप. सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. रिमेंबर दिस. जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा. तो let us see this thing with an example. एक velocity time graph लेते हैं. तो velocity time graph क्या होगा? एक ऐसा ग्राफ जिसके y एक्सिस पे आपने वेलोसिटी को लिया, मीटर पर सेकेंड में ले लीजिए इसको, और x एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड लिया. सो ये क्या है? वेलोसिटी टाइम कर्व या वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मान लीजिए दिस ग्राफ कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स. एक कर्व कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस. अब जो हमने कंडीशन इनिशियली कंसीडर की थी कि t1 पे वेलोसिटी इतनी थी, t2 पे वेलोसिटी v2 थी, वही यहाँ देखते हैं. सपोज एक टाइम इंटरवल t1 पे वेलोसिटी क्या है? टाइम t1 सेकंड के लिए आपको वेलोसिटी मिली v1 मीटर पर सेकंड, और टाइम t2 के लिए जो वेलोसिटी मिली दैट इज v2 मीटर पर सेकंड. t1 पे वेलोसिटी, ये t1 है, दिस t1. रिमूव दिस सो दैट आप आराम से देख सकें. आई एम रिमूविंग दिस ऑल्सो ताकि आपको क्लियरली दिखे. ये v मीटर पर सेकंड में है, ये याद रखिएगा.
सो t1 पे वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड है, t1 सेकेंड पे वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड है, t2 सेकेंड पे वेलोसिटी v2 मीटर पर सेकेंड है. सो लेट दिस पॉइंट A, लेट दिस पॉइंट B. सो फॉर्मूला क्या था? अगर मैं बोलूं एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या होगा? बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या होगा आपका? इट इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था? v2 माइनस v1. अभी हम जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो रिलेशन के लिए v1 v2 लिखा था वही वाला है. सो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. सो दैट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t. अब आप देख रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज व्हाट? दिस इज द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. अगर आप A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो इट विल बी t1, v1. उसी तरह B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो इट विल बी t2, v2. तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप होगा जो पॉइंट A और B को ज्वाइन करेगी? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा जो पॉइंट A और B को ज्वाइन करेगी, जैसा कि वेलोसिटी के केस में होता था जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे? तो अगर आपसे किसी भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो वो क्या होगा? दैट विल बी द स्लोप ऑफ straight line joining those 2 points. So average acceleration between point A and B will be what? Will be slope of straight line between A and B. यही होगा, जो कि ये जो चीज है ये आपको यही दे रहा है, स्लोप ही दे रहा है स्ट्रेट लाइन A और B का. तो इस तरह से ग्राफ से एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह से समझा जाता है. ये स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, जो जिन दोनों पॉइंट्स के बीच आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाला जाता है. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे? ये टाइम इंटरवल कम करते जाते थे, या टाइम इंटरवल बहुत छोटा, तो इस t2 को इधर खिसकाते जाएंगे, t2 को खिसका के क्या कर देंगे? ऑलमोस्ट t1 पे ओवरलैप कर देंगे, सो दैट डेल्टा t क्या हो जाए? एकदम एक या जीरो को टेंड कर जाए, बहुत छोटा हो जाए. तो t1 t2 ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे. उस केस में अगर आप t2 को इधर खिसकाएंगे तो v2 भी नीचे आएगा, तो डेल्टा v जो होगा वो भी छोटा होगा. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? t2 इधर आएगा, तो इसी पॉइंट पे जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप होगा. सो जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का रिलेशन वेलोसिटी के साथ देखा था, उसी तरह से एग्जैक्टली सेम रिलेशन इज फॉलोड बिटवीन वेलोसिटी, टाइम कर्व एंड acceleration. So we will talk about this, or we will see some questions on this thing. Then you will be more familiar with the topic. So today we will keep it till here. We will continue to talk further on this topic in the next time. Thank you so much.